آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ اے دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور محمدی دین کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات سماعت فرمائیں۔ ابھی موضوع حضور اپنی پہچان اور تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ جیسے حضور کے زمانے میں مومن و انصار نام مشہور تھا، گورستان میں حنفی اور سنسوی کہا گیا، اب ہندوستان میں چشتی، صوفی اور نیازی مشہور ہے۔ مچن بابا کی کئی نشانیاں قوم نیازی میں پائی جاتی ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہرام گور کی دستار بندی کی تھی۔ اس دستار بندی کی نشانی یہ ہے کہ شادی بیاہ اور بچوں کے رسم ختنہ میں نوشہ کو پگڑی باندھی جاتی ہے، اور پگڑی باندھنے سے قبل پگڑی کو 5 آدمیوں کے سر سے چھوا لیتے ہیں، اور عورتیں مبارکبادی کی گیت گاتی ہے کہ یہ حضور کی پگڑی ہے، یہ حضرت علی کی پگڑی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ بہرام گور کی پگڑی ہے اور یہ مچن بابا کی پگڑی ہے، تب یہ نوشہ کی پگڑی ہے۔ ان 5 ناموں کا واسطہ دے کر تب نوشہ کے سر پر باندھی جاتی ہے، اور اس پر پھول کا صحرا اور مقنا باندھ کر قریبی مزار یا مسجد میں سلام و سجدہ کراتے ہیں۔ دوسری نشانی پگڑی سویہ کا فاتحہ ہوتا ہے۔ یہ فاتحہ بیشاخ میں گھر کے ہر مردانہ بچے، بوڑھے تک سب کے نام سے فی کثرت تعدادی گلگلہ اور رحم بنا کر بوقت اثر عورتیں مسجد میں طاق بھرتی ہیں۔ ہمارے خاندان کی پگڑی سلامت رہے۔ تیسری نشانی بی بی متو کے نام فاتحہ ہوتا ہے۔ بیاہ اور ختنہ کے موقع پر نئی کوری 5 یا 7 رکابی میں کھانا رکھ کر فاتحہ ہوتا ہے، جس کو بی بی کا فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس فاتحہ میں رکابی کا کھانا صرف لڑکیاں کھاتی ہے، لڑکوں کو کھانا منع ہے۔ چوتھی نشانی مچن بابا کے نام سے سالانہ کڑاہی میں ملیدہ بنا کر یا دودھ، کھیر، کھوئی، گلگلہ، رحم بنا کر فاتحہ ہوتا ہے، جس کو کڑاہی کا فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس فاتحہ کے تبرک کو صرف مردانہ چکھتے ہیں، لڑکیوں کو چکھنا منع ہے۔ 5ویں نشانی مچن بابا کے 2 منتر بزبان پشتو قوم نیازی میں محفوظ ہیں۔ پہلے منتر سے کتا کاٹنے کا زہر، دوسرے منتر سے سانپ کاٹنے کا زہر دور ہو جاتا ہے، جو لکھ چکا ہوں۔ گویا گورستانی قوم ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کے خاندان میں کوئی نشانی ملتی ہو وہ لوگ قوم نیازی ہیں، کیونکہ گورستانی قبیلے میں انصار، شیخ، سید، مغل، پٹھان، افغان وغیرہ سبھی ملے جلے ہیں، اور مچن بابا کو اپنے علاقے میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی منن بابا کہتا ہے، کوئی ملنگ بابا کہتا ہے، کوئی سپہا بابا کہتا ہے، اور کوئی مرچن بابا کہتا ہے۔ اور مچن بابا کو کوئی شیخ سمجھتا ہے، کوئی سید کہتا ہے، کوئی مغل اور پٹھان کہتا ہے۔ کابل والے، کندھار والے کہتے ہیں کہ نیاز مچن کھیل سید تھے۔ سنکینیا چین اور تاشقند روس میں مشہور ہے کہ مچن بابا مرزا تھے۔ ہندوستان میں مومن یا انصار کا کہنا ہے کہ شفا بابا انصار تھے، ہم لوگ ان کی اولاد ہیں۔ اکثر پٹھانوں کا کہنا ہے کہ مچن بابا پٹھان تھے، ہم لوگ ان کی اولاد ہیں، جن کا مزار قبائلی پہاڑ پر ہے، جہاں آج بھی اس مزار پر سانپ لپٹے رہتے ہیں۔ جو زائرین پہنچتے ہیں تو سانپ خود بخود ہٹ جاتے ہیں۔ وہ مزار گوہر بار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ان نشانیوں سے قوم نیازی کا سراغ ملتا ہے، چونکہ مچن بابا کا قول تھا کہ ہم قوم محمدی ہیں، دین محمدی ہمارا مذہب ہے، اس مذہب میں فرقہ بندی کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ نے محمدی روشنی پیش کی اور فرقہ بندیوں کو ختم کیا، اس لیے آپ کا نام نیازی مچن خیل مشہور ہو گیا۔ گو کہ
खेल मुच्चन खेल नाम कुछ और ही था, असल नाम कुछ और ही था, क्योंकि पश्तो जुबान में खेल मानी फिरका और मुच्चन मानी पीसने वाला, यानी फिरका बंदियों को खत्म करने की वजह से एक मुहावरा मशहूर हो गया कि फिरका बंदी चक्की में पिस गई। उसी रोशनी से हमने भी सम्मा न्याज़ी लिख दिया कि फी ज़माना फिरका बंदियों को चक्की में पीसने वाला मुराद फिरका बंदियों को खत्म करने वाला सम्मा न्याज़ी है। सम्मा न्याज़ी किसी शख्स का नाम नहीं, गो कि मेरा भी असल नाम कुछ और ही है। सम्मा न्याज़ी माने मोहम्मदी रोशनी, जो फिरका बंदी को खत्म करे, यानी पश्तो जुबान में न्याज़ी मुच्चन खेल के जो मानी मतलब है, उर्दू में सम्मा न्याज़ी के वही माने मतलब है। यूं तो आम तौर से मशहूर है कि जो न्याज़ फातिहा करे वो न्याज़ी है और जो कुछ न करे उसे वहाबी कहा जाता है। खुलासा मतलब ये है कि उम्मत मोहम्मदिया के हर अफराद सम्मा न्याज़ी यानी मोहम्मदी रोशनी है, क्योंकि कुदरती खासा है जहाँ रोशनी पहुँचती है वहाँ से अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन कराम के सामने तवारीखी ये दो सफ़े पेश किए गए हैं। हमारे इस तवारीखी तारुफ से आप अपना भी तारुफ कर सकते हैं। अगर आपके समझ में आ गया हो कि हम और आप दोनों कौम न्याज़ी गोरिस्तानी कबीले से हैं तो मंदरजा झेल मजहब का मुताला करें। अगर आपके समझ में आ गया हो कि हम और आप दोनों कौम न्याज़ी गोरिस्तानी कबीले से हैं तो मंदरजा झेल मजहब का मुताला करें। काश तवारीखी दोनों सफ़ों को नहीं समझ पाए तो अब और आगे किताब ना पढ़ी जाए, वरना खसारा होगा, क्योंकि पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पहले तवारीख समझना चाहिए, उसके बाद मजहब समझ में आ जाएगा। बस कौम न्याज़ी के लिए मंदरजा झेल मजहब लिख रहा हूँ। हमारा मजहब क्या है आगे बयान कर चुका हूँ कि गोरिस्तान वालों के साथ बनु उमैया व गजनविया ने कौन सा बर्ताव किया, लिहाजा जो मजहब बनु उमैया व गजनविया का था उनका मजहब नहीं हो सकता है। जबकि बनु उमैया के मजहब का हुक्म था कि जुमा के खुतबों में मिंबर पर खड़े होकर हजरत अली और बनु फातिमा को गालियां दी जाए, और गालियां दी गई। और हमारे मजहब का हुक्म है कि फरमाने रसूल है मन कुंतो मौला फ अली मौला, कि जिस उम्मत का मौला मैं हूँ बस अली भी उस उम्मत के मौला है। लिहाजा हम हजरत अली को मौला मानते हैं और बनु उमैया व गजनविया हजरत अली को गालियां बकते हैं। फिर बनु उमैया, बनु तैमिया, बनु गजनविया का मजहब उनके लिए हो सकता है, उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं। नंबर 2, हमारे मजहब में है कि हुजूर ने फरमाया अली मुझ में है और मैं अली में हूँ, लिहाजा जो अली का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और हाफिज शिराजी ने फरमाया कि आल रा के दोस्ती अली नेश्त का फरस गो जाहिद जमाना या शेख राहबाज। तर्जुमा है कि जो अली का दोस्त नहीं वो भी काफिर है, ख्वाह वो जमाना का कोई बड़ा आलिम हो या कामिल पीरो मुर्शिद या कोई कामिल पीरो मुर्शिद तबशिरा। जबकि कौल है कि जो अली का दोस्त नहीं वो भी काफिर है, लिहाजा जो अली का दुश्मन है वो तो यकीनन काफिर है। चुनांच हम जानते हैं कि बनु उमैया व गजनविया हजरत अली के दोस्त नहीं थे, और तवारीखों से बखूबी साबित है कि बनु उमैया व गजनविया हजरत अली के दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। बहरहाल उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है। अभी तो हमारा मजहब ये है, सुनिए, कि हम हजरत अली को मौला मानते हैं। अभी तो हमारा मजहब ये है, सुनिए, कि हम हजरत अली को मौला मानते हैं और फरमाने रसूल से इल्म का शहर इमामुल औलिया और मखज़न इल्म लदनी मानते हैं। हासिल कलाम ये कि हजरत अली करमल्लाह वजह को ही सब कुछ मानते हैं। अब हजरत अली करमल्लाह वजह जो मजहब पेश करेंगे हम उसको अपना मजहब तस्लीम करेंगे, और अब तक हजरत अली के जरिए ही मजहब माना गया। मुच्चन बाबा का मजहबी फलसफा, चूँकि मुसलमानों के सामने दो किस्म के अंधेरे हैं। अव्वल अंधेरा वो मुनाफिक लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर लेने के बाद भी आस्तीन के सांप बनकर हमेशा उम्मत मोहम्मदिया को डसते रहे, वो मुनाफिक मिस्ल सांप है। और दो अंधेरा है वो मुखालिफ लोग हैं जो ईमान नहीं लाए और हमेशा तौहीन रसूल करते रहे, और मुखालिफत मिस्ल कुत्ते हैं जो पहले भौंकते हैं बाद में काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुच्चन बाबा ने एक मंत्र सांप का बख्शा और दूसरा मंत्र कुत्ते का बख्शा कि मासूम लोग सांप और कुत्ते के जहर से महफूज रह सकें। पहले मंत्र का तर्जुमा किताब तफरीक़ इस्लाम 72 फिरके हैं, जिसके पढ़ने से मुनाफिकों को अच्छी तरह समझ लेंगे, रोकथाम और इलाज भी कर लेंगे। दूसरा मंत्र का तर्जुमा रूहुल इस्लाम 14 नुस्खे नामी किताब है, जिसके मुताला से कुत्ते को भी समझ लेंगे और अपनी हिफाजत भी कर लेंगे।
वह 14 नुस्खे में ताज़िया की हकीकत, मुअज़्ज़ज़ा की हकीकत, काबा की हकीकत, कुर्बानी की हकीकत, आखिरी सजदा वगैरह हैं। फिर मोहम्मदी रोशनी का तर्जुमा सम्मा इस्लाम नामी किताब है, जिसके मुताला से खुद और खुदा को और तमाम राजों का इंकशाफ हो सकता है। बस तफर्रक़ा इस्लाम की नियाजी रोशनी से पहले दोनों किस्म के अंधेरों को देखें, उसके बाद मोहम्मदी रोशनी से अंधेरों को दूर कीजिए। इस किताब को लिखने का सिर्फ मकसद यह है कि इस्लाम में किस कदर तफरका पैदा हुआ कि 72 फिरके नमूदार हुए और मुनाफिक लोग किस तरह आस्तीन के सांप बनकर डसते रहते हैं। हुजूर की पेशनगोई से यह साबित किया गया है, पहला मुनाफिक वो शख्स था जिस पर 72 फिरके होने की पेशनगोई और खुद हुजूर सरकार दो आलम ने फरमाया था। दूसरा मुनाफिक उसका बेटा था जिस पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरबकारी की पेशनगोई थी। तीसरा मुनाफिक उसका पोता था जिसने वाकई नबूवत के 72वें साल आले रसूल पर जरबकारी लगाई कि 72 अफराद को करबला में शहीद हुए। गोया हुजूर की तीनों पेशनगोइयां उसी वक्त ज़हूर में आ गई। गोया उन मुनाफिक मुसलमानों से इस्लाम में 72 फिरके नमूदार हुए और हर फिरके उलमाई शक्ल बनाकर कुरान और हदीस का ही नाम लेकर अपनी शरीयत बनाया और बजोर ताकत मुसलमानों से अपनी शरीयत मनवाकर कौम को फरेब दिया। बस फिरका पर उलमा पर यही पेशनगोई बाबत दज्जाल साबित हो रही है, क्योंकि फरेब को अरबी में दजल कहा गया है, लिहाजा दजल माने फरेब देने वाला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तिजा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात जरूर समाअत करें और ख़ास कर उन भाइयों तक ये पैगाम हकीकत और पैगाम मोहब्बत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल व दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात और पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम और मोहम्मदी शरीयत पेश करके खुद शाख्ता शरीयत और यजीदियत को बेनकाब कर देंगे। जिस तरह यजीद के रुख से आका हुसैन सल्लल्लाहु पाक करबला में हिजाब खींच लिए और हक व बातिल को जमाना देखा, ठीक उसी तरह अहले यजीद के रुख से भी गुलामान हुसैन नकाब खींच लेंगे और एक बार फिर हक व बातिल को जमाना देखेगा। जी हाँ नाजरीन, अगर आप मोहम्मदियत और हुसैनियत को पसंद करते हैं तो आप अपने इस मोहम्मदी चैनल पर मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस मोहम्मदी पैगाम को और मोहम्मदी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाजरीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आखिर में आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़।